Hi, I'm Kylie, just another Army vet, and welcome to another reaction video. Today, I'm finishing my reaction to a video by Prachyam. This is the Sahebs who never left. Let's get to it. The next stage is destabilization. Dropouts or half-baked intellectuals are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. संपन्न परिवारों के बच्चे अब पढ़ने लिखने इंग्लैंड जाते, बैरिस्टर और सिविल सर्वेंट बनते। वापस आने पर इन भूरे साहबों के दिल में मैली कुचली जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची रहती थी, बल्कि अब तो इन्हें डर लगता था कि ब्लडी विलेजर्स मालिकों को कहीं ज्यादा गुस्सा न दिला दें। इंप्रेशन चौपट हो जाएगा। You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior. ब्रिटिश राज खुश था। राज के संरक्षण में राजे रजवाड़े भी अय्याशी कर रहे थे, पर सबसे खुश थे भूरे साहब। मालिकों ने ब्लैक डॉग्स को रूल करने का पावर अब उनको जो दे दिया था। जिन एलीट्स ने खुद को प्रूव किया, उन्हें गोरों ने जागीरें, तमगे और सम्मान दिया। किसी को राय बहादुर, किसी को खान बहादुर, तो किसी को नाइटहुड। गांवों में बेलख रही जनता की कौन सुन ले। इंडिया और भारत दो अलग सोच बन गए। इसी सदी में भारत के क्लास डिवाइड की लकीरें हमेशा हमेशा के लिए खिंच गई। आम जनता ने भी अब आस छोड़ दी थी। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अब कभी भी अस्त होता नहीं दिख रहा था। It's crazy how a little bit of power and money just causes people to completely abandon their ideals in their country. So this does remind me of the American Revolution, actually. We had some colonists who were like, we don't want to be ruled by King George. We're 3,000 miles away. We want our own government. Let's start a revolution. Then you had a lesser part of the population who said, no, King George is our king, and I serve the British Empire. And besides, if I join them, they're going to give me land and power and money and even a command in the army. That sounds kind of similar to what just happened here. They sold their countrymen out so they can get some power and some money. 1947 तक ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इंजन था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल में इंडियंस को अनौपचारिक मेंबर्स के रूप में चुना जाता था। देश के सबसे बड़े भूरे साहब, जमींदार, राजकुमार, वकील, मजिस्ट्रेट और व्यापारी इसका हिस्सा बनते थे। जाहिर सी बात है, ये वही लोग होते थे जिनकी वफादारी पर क्राउन को पूरा विश्वास था। We think that subverter is a person who is going to blow up our beautiful bridges. No. Subverter is a student who comes for exchange, a diplomat, an actor, an artist. You have your own person who has studied the oppressor, and because he is an insider to the culture, he perfects it to the extent, to levels that no foreigner can. Sleeper agents. चालाक ब्रिटन्स बहुत पहले से ये समझते थे कि भारत में उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती निरंकुशता देखकर एम्पायर को बचाने के लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का गठन किया। इरादा था कि हल्के फुल्के रिफॉर्म्स करके 1857 जैसी परिस्थितियां। If memory serves, 1857 was some giant revolt all over India against the East India Company. I think that's when the British took control from the East India Company. I'm not sure though. If someone wants to clarify, I'd appreciate it. दोबारा बनने से रोका जा सके। इस सेफ्टी नेट के पहले मेंबर्स कौन बने? वही इंपीरियल काउंसिल जैसे भूरे साहब। ह्यूम का डर गलत नहीं था। अंग्रेजों के सबवर्जन से आहत भारत भूमि से अब नई आवाजें उठ रही थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती की कलम से
स्वराज का नारा बनकर निकला। What is that? स्वराज, भारत भारतीयों के लिए। You need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of society. ये आग अंदर ही अंदर पूरे देश में फैल रही थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, बिपिन चंद्र पाल जैसे दार्शनिक उभरे। राष्ट्रवादी विद्वानों के स्वदेशी शोध को पढ़कर नई पीढ़ियां डिमोरलाइजेशन से इम्यून होने लगी। भविष्य के महान क्रांतिकारी इसी विचारधारा के प्रभाव में पड़े हुए। समय की करवट को भांपते हुए इंपीरियल काउंसिल के जेंटलमैन अब कांग्रेस में अटेंडेंस बढ़ाने में लगे। आलिशान बंगलों और तबकों के महान बलिदान का प्रचार करके अब भूरे साहब कुर्ता पजामा पहनकर स्वतंत्रता सेनानी बन गए। On that stage, students are being sent back, or if they were already in the country, which is the object of subversion, they spring to action. The sleepers go up. एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। आजादी की लड़ाई में उग्र देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ इंपीरियल काउंसिल के भूरे साहब भी घुल मिल गए। अंग्रेजों के लिए भी ये अच्छी खबर थी। They slept for 15 to 20 years. Now they become leaders of groups, preachers, public figures. They actively include themselves in the political process. इनमें सबसे आगे था इलाहाबाद का अत्यंत धनी और प्रभावशाली नेहरू परिवार और उसके संरक्षक मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजियत नेहरू परिवार के खून में थी। 1911 के दिल्ली दरबार में वीआईपी ट्रीटमेंट, चाहे सिविल लाइंस की आलीशान पार्टियां। अंग्रेजों ने कभी मोतीलाल को उनके भूरेपन का एहसास नहीं होने दिया। Teacher's pet. मोतीलाल का नाम किताबों और फिल्मों में महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मिलता है, पर ऐसी कौन सी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे कि अंग्रेजों कितने चाहते थे। प्रसिद्ध बैरिस्टर मोतीलाल शायद ही कभी किसी क्रांतिकारी का मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को काकोरी कांड में फांसी की सजा मोतीलाल के रिश्तेदार और मित्र जगत नारायण मुल्ला ने दिलवाई। मोतीलाल जी बेटे के कैरियर से ज्यादा चिंतित थे। बेटे की पढ़ाई खत्म होने के पहले ही मोतीलाल ने बड़ी सफाई से खुद को कांग्रेस का किंग मेकर बना लिया। भारतीय जनमानस के सबवर्जन में अनजाने ही सही, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। Among the lot of freedom fighters who fought for India's independence, Gandhi was identified as the least threatening. Okay, so he turned the entire direction of the freedom struggle. Plus, he had a mass following. At all strata of the society, you have to give it to him. He had a mass following which no other leader had. अगर किसी ने गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा हो तो वो ऐसी अजीब सी किताब है कि वो उसमें खुद से सवाल पूछे जा रहे हैं, खुद से उसके उत्तर दिए जा रहे हैं। उसमें उनकी अहिंसा की एक बड़ी अजीब सी अवधारणा है जिसमें ये कहा जाता है कि चोर को मत मारो। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा पिता ही तुम्हारे घर में चोरी करने आ जाए तो क्या उसको मारोगे? अब आप इस लॉजिक की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता। इस तरह का लॉजिक जो है वो गांधी जी ही दे सकते थे। 1928 में मोतीलाल ने गांधी से सोर्स लगवाकर बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया। यहीं से कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा का शुभारंभ भी हो गया। गांधी जी described Jawaharlal Nehru as pure as crystal, truthful beyond suspicion, and said, "The nation is safe in his hands." नेहरू एक सच्चे भूरे साहब थे। भारत की जमीनी सच्चाई से मीलों दूर वो फेबियन सोशलिज्म वाले क्रांतिकारी थे। इलाहाबाद और इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच पले बड़े नेहरू गलत समय पर गलत जगह आकर खड़े थे। पापा की पार्टी के अध्यक्ष बनकर वे भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले नायक बनने के सपने देख रहे थे, पर शतरंज के प्यादे तो कोई और ही एम्पायर के क्राउन का सबसे बड़ा हीरा भारत था। भारत में जब स्वतंत्रता एक निश्चित सच्चाई बनकर उभर रही थी, उसी दौरान अंग्रेजों ने इंपीरियल काउंसिल के एक और भूरे साहब को
लंदन में कल्टीवेट किया। मोहम्मद अली जिन्ना। Winston Churchill specifically cultivated Jinnah. I think the India House, or one of those institutions in England, they recently released all this correspondence with Jinnah and Churchill, meeting minutes and the correspondence that they had. Jinnah was cultivated specifically by Winston Churchill and some other British leaders. 15 years ago, he did his dirty job and nobody cared. Now he makes it a political issue. He demands recognition, respect, human rights, and he rallies a large group of people. And there are violent clashes between him and police, his group and ordinary people. That is destabilization. Now the root of the Dravidism has been set. The root of the Khalistan has been set. There's a period when the Islamists are thrown more toward the radical Islamic ideas. We see in the 1920s how the people, the Muslims of the southern belt, that is the Muplahs, they were really mobilized to fight for a caliphate, which even the Turkish people didn't want. Then comes the era of the communists in the 1940s when they spoke about the splitting of the various factions wherever there is a Muslim majority. So there were a lot of things which were happening, a lot of movements, a lot of separatist ideas which were really brewing more and more in India. जिन्ना और उसके साथियों ने So all this destabilization and all the riots, that's exactly what they want. So now they can have justification to go ahead and separate the Hindus from the Muslims when they partitioned India in 1947. 1945 आते आते भारत के सांप्रदायिक हालात काफी बिगाड़ दिए थे। पूरा देश जल रहा था और कांग्रेस के सभी आंदोलन असफल हो चुके थे। भूरे साहबों ने सही समय पर पाला बदला और नेताजी की प्रसिद्धि की लहर पर चढ़ गए। Of course they did. ब्रिटिश राज ने भूल करते हुए आजाद हिंद फौज के ऑफिसर्स पर देशद्रोह के ट्रायल्स शुरू किए। आजाद हिंद फौज के जवानों के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। सिविल वॉर की आग नेताजी की प्रसिद्धि के आगे फीकी पड़ गई और उल्टा राज ही निशाने पर आ गया। खतरा महसूस करते हुए राज ने जिन्ना को आगे बढ़ाया। अब समय था सबवर्जन के अंतिम चरण का, क्राइसिस। Destabilization process usually leads directly to the process of crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. गांधी ने 1928 की अपनी गलती फिर से दोहराई, जो इस बार पूरे भारत को महंगी पड़ने वाली थी। करोड़ों लोगों के बलिदान से आजादी की लड़ाइयां अब अंतिम चरण में थी। जो भी अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, आजाद भारत के प्रधानमंत्री का पद भी उसे ही मिलता। और सबके प्रिय नेता थे सरदार पटेल। There were 15 Congress state parties. Out of 15, 12 elected Patel. Not even one gave any vote to Nehru. जनता चाहे बोस को चुने या पटेल को, आगे वो हमेशा नेहरू को ही खड़ा पाती थी। भूरे साहब को द लास्ट इंग्लिशमैन टू रूल इंडिया जो बनना था। The population at large is looking for a savior. Population is sick and tired already. A savior comes and says, I will lead you, who is half-baked intellectual, sometimes graduated from Harvard University or Berkeley. डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने डंके की चोट पर हिंदुओं का नरसंहार किया। पूरा देश सिविल वॉर में धधक उठा। आईबी के डायरेक्टर का लंदन को एक सीक्रेट नोट, द गेम सो फार हैज बीन वेल प्लेड। नेताजी के समर्थन में सशस्त्र सेनाओं का विद्रोह भारत में रह रहे सभी अंग्रेजों के लिए जान का खतरा बन गया। क्लेमेंट एटली ने भारत छोड़ने की तारीख तय कर दी, जून 1948। अमेरिका ने कम्युनिज्म और साम्राज्यवाद को खत्म करने की अपनी नई फॉरेन पॉलिसी की घोषणा की। खरबों के उधार में दबे ब्रिटेन के पास बिग डैडी अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। यूएस और ब्रिटेन का एक नया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जन्मा, भारत का पार्टीशन। आनंद फानन में डिकी माउंटबैटन को इंडिया का वॉइसरॉय बनाया गया। उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस। नेहरू माउंटबैटन से शिमला में मिले। डिकी ने नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर का पहला प्लान दिखाया।
प्रोजेक्ट बैल्कन। भारत के निर्दयी पार्टीशन का प्लान देखकर नेहरू साहब बिल्कुल घबरा गए, पर मशोबरा की वादियों में उनकी खास दोस्त एडवीना ने उनको संभाला और अंत में राजी करवा दिया। He comes back to his country and he thinks that he knows the answer to all the social economical problems. माउंटबेटन ने अचानक घोषित किया कि ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही हो जाएगा। बस 10 हफ्तों में सब भौचक्के थे। उसी दिन शाम को भारत का विभाजन रेडियो पर अनाउंस हुआ। मुसलमान और हिंदुओं में दंगे शुरू हो गए। स्वतंत्रता संग्राम का सबवर्जन साहिबों को माध्यम बनाकर अब पूरा हो गया था। So we have two alternatives here. Civil war and invasion. सिविल वॉर शुरू होने के कुछ घंटे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शैंपेन खोली और इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू साहब ने जाम उठाया और कहा टू किंग जॉर्ज VI, The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. आधी रात को अचानक से दिल्ली में ढोल ताशों का शोर हुआ। घर में खुशी से उछल रही अपनी बेटी को देख वॉइसरॉय के एडवाइजर वीपी मेनन ने आह भरते हुए कहा, हम सबके सबसे डरावने सपने तो अब सच होने वाले हैं। And the masses cheered for their leaders. They did not know who their leaders were cheering for. I think that's a very poignant and powerful quote, and I think that probably sums the video up, actually. Considering that I'm an American and this video was very eye-opening and mind-blowing, I can't imagine what's going through the head of an average Indian citizen watching this video. I can't see that the majority of this information was ever taught in Indian schools, not at all. This is the kind of video that certain groups of people want to suppress from the masses, which just makes the video's message even more important because it is the truth. And as you know, people do like to suppress the truth, especially when it comes to India. India has a history of their truth being wiped out, but this time their truth is not in a university that's going to be burning for 3 months. No, instead, we have it on the internet. It's not going anywhere, and I think that this message just needs to be shared more. If you want to help me spread the message, then you can do 2 easy things. 1, you can like this video to tell YouTube that this video is worth watching, and you can also go to the original video, I'll link it below, and like that video as well. Once they publish the second part, I will react to it and I'll put it right here. If you do want to watch another eye-opening and mind-blowing video, why don't you check out The Silence of the Swastika? I'll put it right here. Thanks for watching.